गाइस, जिस लेडी की मैं बात कर रही थी, हु इज अ वर्किंग वुमन एंड फॉलोइंग हर पैशन, दैट इज सारा शामी। अस्सलाम वालेकुम। हाय सारा, हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं यार? बिल्कुल ठीक। आई एम so glad that this finally happened. No, we have been trying for a few weeks now कि Yes. हम मिल लें और हम ये डिस्कशन कर लें, बट आई एम रियली ग्लैड यू आर हियर नाउ। बिकॉज सारा, आपकी स्टोरी का जो सबसे ज्यादा कैच मुझे लगा ना, दैट आई वाज आल्सो वेरी इंस्पायर्ड दैट नाउ एट लाइक यू आर इन योर 40s, राइट? Yes, yes, I am. शी इज इन हर 40s एंड शी हैज स्टार्टेड हर पैशन। मुझे तो भाई वो लोग वैसे ही बड़ा इंस्पायर करते हैं हु फॉलो देयर ड्रीम्स। व्हाट इंस्पायर्ड यू? Yeah, देखो, so cooking was something that was a part of my life growing up. ठीक है, my mother is a great cook. मैंने a lot of what I've learned is from my mom, and cooking was something that I would always do for friends and parties and this and that. But you know what? There came a time when people started saying, you know, share it with the world. You should share it with the world. So I know that there are lots of women like me who have kids, who are working, who have careers, Yes. who are balancing work life. So I wanted to make recipes that you know you can make every day. So Yes. that was the idea. मेरे चैनल पे कोई भी आपको रेसिपी नहीं मिलेगी जो कि लंबी है या एक्सटेंडेड है. So food is just something that brings me great joy, Aisha. एंड आई थिंक सारा यही सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है और मोटिवेशन है कि जो आपकी जो रेसिपीज है ना, दे आर क्विक। Yeah. और जो वर्किंग वुमेन है, मैं इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, Yeah. यूट्यूब पे अगर मुझे कभी कुछ बनाना है तो मैं लिखती हूँ स्पेसिफिकली इजी एंड क्विक। Yeah, 30 मिनट, like 30 मिनट, 20 मिनट. अब Yes. अक्सर हम ऑफिस से आ रहे होते हैं, हम लेट भी आ रहे होते हैं, कभी हम जल्दी भी आ जाते हैं, हाँ. लेकिन अक्सर we get stuck and we don't want to make those long lengthy dishes, and the kids want something nice and quick and delicious as well. Yes. So that's where I come in and I make these recipes, and I hope that people can relate to it. I think people relate to it. पीपल आर रिलेटिंग टू इट। माशाल्लाह, आपके जो स्टोरीज पे और वीडियोस पे जो हाइप है, एंड आई हैव माई सेल्फ ट्राइड अ फ्यू, तो बहुत ही जबरदस्त है, Thank you, Aisha. टेम्पटिंग लग रही Thank होती है you, thank देखकर। अच्छा सारा, ऐसा होता है ना कि जैसे आप बच्चों को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हम बड़ी खवातीन, एक लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको होता है मेरा क्या पर्पस है, हाँ, मैं अपने लिए Yeah, क्या yeah, कर रही yeah, हूँ, यू नो। absolutely. सो क्या वो एक चीज थी, फैक्टर जिसने आपको hit किया? Absolutely, Aisha, वो थी. And I was at a point in my life where I was thinking कि I am unable to do my passion. So cooking and food is my passion, and cooking for my kids is my passion. I So can see it in your eyes. so when yeah, you so talk it was about your something that passion. and my friends as well, not just Uh-huh. my family. मैंने कहा ये I should share this with the world. I think that was the idea. And जब मैं किचन में होती हूँ, चाहे गर्मी भी हो, चाहे मुझे पसीना भी आ रहा हो, but it brings me great joy. So you have to do things, Aisha, that give you great joy. When you reach my age, and माशाल्लाह तुम तो छोटी सी हो, तुम्हें छोटी सी एज में अपना पैशन मिल गया. You're so lucky that you started Yes, out early, that's but better late than never. Yes, I always exactly better late than never. अच्छा, किस किस को अभी तक खाने बना के खिलाए हैं आपने? So a lot of people. So my immediate family, my kids, my in-laws, my parents, my siblings, my colleagues have somehow gotten quite a कोशिश Very मैं करती हूँ nice, कि मैं हाँ. weekend पे जब cooking करूँ तो मैं leftovers ले जाऊँ अगले दिन. Okay. I would like to do more. I would like to sort of organize this into a bigger setup. अभी I'm in the process of making it bigger. अभी इतना Right. बड़ा नहीं है, Right. because I have one kitchen and that kitchen is also used हाँ. by my family. So ये जो तुम जगह देख रही हो यहाँ पे, इंशाल्लाह मेरा ड्रीम है कि मैं छोटा सा अपना सेटअप बनाऊँ. इंशाल्लाह, in fact मेरा आपके लिए ये ड्रीम है कि आपका कैफे हो Yeah. and you should have a restaurant. अच्छा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज्यादा. So I have an army. I have a village. That is, I think अक्सर मेरे से लोग कहते हैं कि कैसे कर लेती हो. मैं नहीं कर सकती खुद. ये अकेले की बस की बात नहीं है किसी की. जो कहता है कि I can do it all. I don't know. I hope they're strong enough. I'm not that strong enough. I have had a lot of support from my in-laws, my parents, my siblings, and obviously my husband and my kids as well. So मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं. वो भी मुझे मेरी इस जर्नी में बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं. बिलाल तो खैर है ही है, and मेरी सास और ससुर and everyone, my cook, मतलब वो भी बेचारे ले आऊँ वीडियो, वो थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में जाती हूँ तो कहते हैं लाइट ले आओ. So yeah, I have a lot of support. That's so sweet. अच्छा सारा, लेकिन कभी कभी अपनी पैशन से ना फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि एक ही काम आप मोनोटोनस हो जाती है ना रूटीन, तो फिर आप थक जाते हैं. कभी अभी तक वो पॉइंट आया जहाँ आपको लगता हो
I don't want to do it. No, so I don't do it every day, Aisha, अच्छा. because you can't इसको रोज करना possible नहीं है, because ज़ाहिर है it's physically taxing, Yes. it is financially taxing. आपने ingredients लेने होते हैं, आपने shopping करनी होती है, so I do give myself a break. I can't cook every day. मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं 2-3 recipes एक साथ बना लूँ और फिर मैं I post them over the week. So you can't do it every day. जैसे I'm sure you need a break. जैसे कभी-कभी मैं देखती हूँ तुमने भी एक दिन लिखा हुआ होता है कि आज मैंने break ली है. So we all need breaks. Exactly. हम ऑफिस से भी तो break लेते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना. और इसी तरह आप ना कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं. बिल्कुल. ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट अपने लिए. अच्छा सारा, आप एक होता है ना कि आप जहाँ काम कर रही हैं वहाँ पर भी माशाल्लाह आप एक हेड पोजीशन पर हैं, तो आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपके साथ एक टीम होगी. अब आपने वहाँ भी काम को मैनेज करना है, फिर अपने पैशन को अलॉन्ग साइड मैनेज करना. हाउ चैलेंजिंग दैट इज. So compartmentalization of time, Aisha, is very important in life, and that is something, that is a discipline that I have followed my whole life. Okay. Ever since I was young के वक्त हर चीज का टाइम है. ऑफिस का भी टाइम है, बच्चों का भी टाइम है, कुकिंग का भी टाइम है, फैमिली का भी टाइम है. अगर आपने स्पिल ओवर कर दिया ना कि अब आप दफ्तर में अब आप 10-10 12-12 घंटे बैठे हुए, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर. आई एम अ 9 to 5:30, 9 to 6 पर्सन इन ऑफिस. मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज्यादा देर दफ्तर में ना बैठूं. कभी डेडलाइंस होती हैं, कभी लॉन्ग आवर्स होते हैं, कभी डिलीवरेबल्स होते हैं, ऑफ कोर्स उसमें फिर आपको बैठना पड़ता है. बट वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए, I don't think there is any such thing as work-life balance, but आप कोशिश ये करें कि आप हर चीज के लिए वक्त निकालें, प्रायोरिटाइज करें. So cooking is mostly after office or on weekends. Okay. And generally मैं जब घर आती हूँ तो the kids go for swimming, वो रोज चले जाते हैं, तो वो जो बीच में मुझे टाइम मिलता है उसमें फिर कोई आधे घंटे के अंदर 45 मिनट्स में कोई चीज बना ली. जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि प्रायोरिटाइज करें तो हर चीज पॉसिबल है. बिल्कुल. अच्छा सारा, आपने एट द एज ऑफ 41 अपने पैशन को फॉलो किया. आई वांट टू बी स्पेसिफिक बिकॉज़ मुझे पता है ये इतना मोटिवेटिंग है फॉर द वुमेन आउट देयर जिनको लगता है कि हम नहीं मैनेज कर पाते. जी बिल्कुल बिल्कुल. इतना वक्त क्यों लगा? बस आई थिंक our 20s and our 30s were a lot of it were focused on the family, bringing up our children, earning money. I think आपकी priorities थोड़ी सी different होती है. मैं अपनी जिंदगी के इस स्टेज में हूँ माशाल्लाह where my kids have now become independent. So वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें छोटे बच्चे मुस्तकिल आके पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. My kids are now past that age. The older one is माशाल्लाह 14. her 15th year, छोटी वाली 10 साल की है. And because I was a working mother, मेरे बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए. So अब this was a good time for me to think I can do this. 30s में तो I couldn't even have thought of doing it, Aisha. So वक्त की बात है, टाइम की बात है, प्रायोरिटीज की बात है. लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आपने फिर भी वो इनिशिएटिव लिया. I have to follow because by this age a lot of people think कि अब तो जिंदगी गुजर गई, अब क्या ही करना है. लेकिन माशाल्लाह I see your energy. Where do you get this energy from? बस energy, I think it was पर्सनालिटी आपकी कैसी होती है उसमें जस्ट यू हैव एनर्जी. बट शौक की भी बात है आयशा. शौक बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्पस, व्हाट इज माय पर्पस? आई थिंक यू नीड टू कीप आस्किंग योरसेल्फ दैट क्वेश्चन. वरना फिर आप थोड़े से रट में पड़ जाते हैं कि आप एक ही चीज के पीछे भाग रहे होते हैं. सो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. You may surprise yourself. बिल्कुल, very nice. अच्छा, बचपन में भी घर में हाथ बटाती थी किचन में या फिर अभी शौक हुआ? नहीं, so I was always part of the housework. मैं जैसे मेरी अम्मी ने मुझे कोई काम दे दिया, बट मैंने कभी भी हार्डकोर किचन में काम नहीं किया. मैंने कुकिंग बहुत लेटर एज में स्टार्ट किया. I wasn't like I was 15. I think I started cooking after I got married. So उधर से फिर एक शौक डेवलप हुआ, and then you kind of realize, I'm not bad at this. I can do this. उससे पहले तो पढ़ाइयाँ, MBA, अंडरग्रेड, उसी में ही हम फंसे हुए थे और बिजी थे. अच्छा सारा, बहुत सी खवातीन ऐसी होती है जिनको कुकिंग बड़ी फोर्स्ड एक्टिविटी लगती है कि यार कुकिंग करनी जिम्मेदारी है तो करनी है. फॉर यू इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे आपने बताया पैशन तो है ही आपका, लेकिन अर्ली स्टेजेस में जब शादी हुई तब वो फोर्स्ड एक्टिविटी थी, आपको शौक तब से ही था? नो. सो आई वाज वेरी लकी दैट मेरी जब शादी हुई तो मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैंने आके खाने पकाने. My sass and my susar, we always had help in the house. I would go in, I would help, I would come back, I would try new things. वो शौक मुझे अपना था. लेकिन एक होता है ना कि आपने जिम्मेदारी के साथ सबको नाश्ते देने हैं, खाने देने हैं, डिनर देना है. That was never an obligation for me. Right. So because there was no pressure, so I was able to do it at my pace.
at my own pace, and I was able to do it the way I wanted to do it. And then over a period of time वो responsibility भी बन गई, because बच्चे आ गए, और कोशिश ये थी कि बच्चों को घर का खाना दें, हेल्दी खाना दें, so वो बड़ा important था मेरे लिए. मैं इसी पे आने वाली थी कि माओ की कोशिश होती है कि बच्चों को ना हेल्दी खिलाना बहुत जरूरी है. बाहर तो जो चीजें मिल रही है किस तरह के तेल में बन रही है हमें पता है, बट जब आप अपने बच्चों को यू ट्राई टू गिव फूड दैट इज होममेड, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज होती है? बच्चे सालन रोटी खाना पसंद नहीं करते ना? बच्चे बिल्कुल सालन रोटी खाना पसंद नहीं करते, and I'm not going to lie, मेरे बच्चों को बिल्कुल सालन रोटी नहीं पसंद. छोटी वाली तो फिर जरा खा लेती है, but my older one likes continental food. She likes other cuisines. Pan Asian बहुत पसंद है, burgers बहुत पसंद है, junk बहुत पसंद है, पिज्जा बहुत पसंद है. So at least I know, और मुझे ये इत्मीनान है कि जो मैं बना रही हूँ उसमें ingredients क्या जा रहे हैं. Vegetables किसी ना किसी फॉर्म में बच्चे खा लेते हैं. चाउमीन फॉर एग्जांपल, उसमें ढेर सारी सब्जियां डलती हैं. So the idea is to know what they're eating, and then giving them good quality ingredients, because उस पे आपका कंट्रोल है. और जब घर में ही रेस्टोरेंट जैसा खाना मिल रहा हो तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? कभी तंग पड़ जाते हैं मेरे खाने से. They say, you know what, mama, take us out today. We want to have smashed burgers. या कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं आती बनानी. They're like, mama, we want to have this. So yeah, we go out. ऐसी बात. तो हम नीचे गए भी नहीं हैं और सारा ने ऑलरेडी हमारे लिए गार्लिक ब्रेड्स बना के रखी हैं, which I'm going to try now. So let's see how it is. हालांकि टेस्टिंग वाला पार्ट बाद में था, but this is so yummy. सारा, मुझे एक बात बताएं. सारा की रेसिपीज बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं. सारा किसकी रेसिपीज फॉलो करती हैं? So this is I've been cooking for a while now. क्योंकि चैनल तो मैंने अभी लॉन्च किया, अभी it's just been a few months, but ये सारी रेसिपीज, a lot of it is are recipes that have been handed to me by my mom. थोड़ी सी मैंने खुद अडेप्ट की हैं. I love playing around with ingredients. मसाले different किस्म के इस्तेमाल करना, sauces different किस्म के experiments. Oh yeah. I do experiments, especially baking में. So a couple of my recipes that I make a lot, जैसे कि brownies हैं, मैं अभी तुम्हें खिलाऊंगी थोड़ी देर में. So मैं बहुत ज़्यादा I love चेकिंग के अगर मैं किसी इंग्रेडिएंट को कम या ज्यादा कर दूं तो उसका क्या रिएक्शन आएगा. बिकॉज बेकिंग में व्हेन यू स्विच इंग्रेडिएंट्स तो उसका रिजल्ट बड़ा इमीडिएट होता है, और वो बड़ा मजा आता है कि जो ब्राउनीज का टेक्सचर है या कोई भी चीज आप बना रहे हैं उसमें इमीडिएट चेंज आ जाता है. अगर आप एक अंडा कम कर दें, एक अंडा ज्यादा कर दें, फ्लावर ज्यादा कर दें, फ्लावर कम कर दें. So it's like science as well. So I love the science of it. You know, when you mix a couple of ingredients together in different ratios, और उसका क्या outcome आता है. So that is a lot of fun too. See. Welcome to my kitchen. अब हम सारा के किचन में आ चुके हैं, एंड सारा है सारा जो है वो लाइव हमें बना के दिखाएंगी हर रेसिपीज दैट जो मैंने अभी तक तो रील्स में ही देखी हैं, बट आई एम सो एक्साइटेड टू सी. और ये जार भाई हैं जो सारा के साथ होते हैं. कैसे आप जार भाई? थोड़े से शाय हैं. आपको मजा आता है कुकिंग करने में? आपको मजा आता है? जी बहुत मजा आता है माशाल्लाह, खास करके सलावर जी के साथ. जबरदस्त सीखने का मौका मिल जाता है. अरे वाह. तो जो जार भाई हैं वो सारा के दिलीप हैं, जैसे फराह खान के पास दिलीप है वैसे सारा के पास जो है वो जार भाई है. वो तो बेचारे इतना डांट खाते हैं, तोबा. That guy. But माशाल्लाह he is such a huge help. No, he is, of course he is. Helped raise my husband and my brother-in-law, and now he has helped raise my kids as well. So 50 years next year. Oh my God. अच्छा, ऐसे जो हाउस हेल्प्स होते हैं बड़े बड़े लॉयल एंड ऑनेस्ट भी होते हैं. They are very loyal, no? So मैंने शायद जब मैं तुम्हें उस वक्त बता रही थी कि मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें मैंने अपनी फैमिली का तो नाम लिया, बट ये भी मेरी सपोर्ट सिस्टम है. बिकॉज ये मैं इनके ऊपर इनके भरोसे यू नो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हमारे घर में बेटियां हैं. सो ही ट्रीट्स देम लाइक हिज ओन. ही हैज नॉट हेल्प्ड रेज हिज ओन चिल्ड्रन, बट हमारे बच्चों को पाला है. आयशा ने मुझे स्पेशली कहा था कि मुझे फेटुचीनी अल्फ्रेडो खाना है. मैंने कहा दैट इज द इजीएस्ट थिंग दैट वन कैन मेक, एंड शी टोल्ड मी इट्स द इजीएस्ट, एंड आई वाज लाइक रियली? तो बस फिर वो तो हो जाए.
ट्रिक है कि आप while you're boiling the pasta आप सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने अभी क्रीम और दूध को थोड़ा सा मिक्स किया है, बट अभी पानी जैसे ही बॉईल होगा हम जैसे ही फेटुचीनी को बॉईल करने रखेंगे हम साथ ही साथ अपना सॉस भी बना लेंगे। फेटुचीनी का सबसे बड़ा बात ये है आयशा, ये देखो दिस इज फेटुचीनी, दे आर वेरी थिन, so they cook really well, they cling very well to the sauce, that is why I love penne and I love fettuccine, but with ये जो sauce है Alfredo बिल्कुल सही है, ये जो Alfredo sauce है इसके साथ ये जो है ना it suits really nicely। जबरदस्त। गार्लिक, ढेर सारा garlic is my favorite thing in pasta। Garlic I also like। garlic and pasta and olive oil, yeah, that's all you need basically। कुछ और करने सारा this is so healthy ना, घर में आपकी नजरों के सामने सब चीजें डलती हैं। हमारे घर में गार्लिक और टमाटर जो है ना ऐसे। ओके, तो ये आप ऑलिव ऑयल यूज कर रही हैं? Yes, and the special thing about this olive oil, Aisha, is that it is made by Bizenjo Farms. They are a local company and they make organic olive oil। Wow. So they are absolutely lovely। I've been using this olive oil। क्रीम और दूध का मिक्सचर बनाया हुआ है। Right. ये मेरे मसाले and that's it। That's all there is to fettuccine alfredo। यहाँ आपका पास्ता बॉईल हो रहा है, ग्रेट की है, ये बहुत जरूरी है This is for the what? flavor, parmesan cheese। Okay, ये आपने ग्रेट करके रखी। ये मैंने ग्रेट करके रखी है, फ्रेंच बेकरी मेक्स देयर ओन parmesan cheese। So ये हम अच्छा, so we're not going to brown the garlic। इसको बस अच्छी तरह सॉटे करना है और ये तो मुझे खुशबू आ रही है। हाँ। Can you smell it? Yeah। तो अब we are now going to put in the cream। So ये basically cream mixed with a little bit of milk। Okay? It smells so good। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जब तुम क्रीम बनाओगी, क्योंकि क्रीम होती है थिक, इवन दो हमने इसके अंदर दूध मिक्स किया हुआ है। Yeah। तो we take a little bit of pasta water Okay। and we dilute। Oh, it's a hack। ठीक है, it's a hack, it's a very common hack। Yeah। Look at the color। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये मसाले हैं। So this is red pepper flakes, chicken powder, salt and a little bit of black pepper and mixed herbs। ठीक है। Right। So this is now we're going to इसको हम थोड़ा सा reduce करेंगे। So this method is called reduction because we have to wait for the sauce to get thick and that's it। I think it's a chemistry lab, you know, cooking is all science। It's all science and just you know when ingredients come together and you mix stuff together उसका एक मजा ही और है। Yeah। अच्छा, ये देखो आयशा, हमारा पास्ता बस थोड़ी देर में होने वाला है। It has loosened up। This is how you just इसको थोड़ा सा आपने loosen up। Sarah, what's your favorite ingredient in kitchen? I love garlic and I love tomatoes। So Aiza को मैरिनारा सॉस बहुत पसंद है and it's her favorite sauce in the world। और हमारे पास पड़ा भी हुआ है। So मुझे बहुत मजा आता है और ऑर्गेनिक टोमेटो से बना हुआ तो मैरिनारा सॉस इज जस्ट अनबिलीवेबल। So this is nearly ready। Okay। तो हम चूल्हा थोड़ा सा हल्का करेंगे। We are going to wait and I think अच्छा now that ये बबल्स आने शुरू हो गए तो हम थोड़ा सा पार्मेजान चीज, My favorite part। ये कोई बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। I know। If the salt is good enough। Actually बाहर जैसा। Oh my God। सही है, नमक सही है, बहुत जबरदस्त, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर से गार्निश के लिए। I can't wait to have this meal। अभी तो अच्छा Sarah, I want you to tell me that what was the biggest kitchen disaster you have ever done? मैंने कभी ना कोई बहुत बड़े डिशेस बनाई नहीं है जिसकी वजह से किचन डिजास्टर्स हुए हों, बट यस देयर हैव बीन काउंटलेस टाइम्स वेयर ब्राउनीज हैव बर्न्ड एंड बनाना केक हैज बर्न्ड, और वो कभी कभी नीचे से जल जाता है और ऊपर से अनकुक्ड होता है। सो दैट इज समथिंग दैट आई हैड टू लर्न कि अवन का टेम्परेचर कैसे रखना है, कितना ज्यादा उसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालना, इट्स ऑल साइंस अगेन। एंड व्हाट डिड यू डू जब वो जल गया तो फिर आपने उसको कैसे कुछ पीसेस सैल्वेज कर लिए, लेकिन नुकसान भी हुआ और उससे हमने सीखा। we learn from our mistakes। अभी our sauce is ready, sauce हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि हम साथ ही साथ आपका it was too quick। it was very quick। so this is now we're going to start frying। तो ये मैंने ऑयल थोड़ा सा रखा है, ठीक है, और इसमें अब हम प्रॉन्स तुम्हारे फ्राई करेंगे। सबर। तो सारा आज हम क्या क्या आपने बनाया है? तो पहले आपके लिए हमने गार्लिक ब्रेड एज एन एपेटाइजर सर्व किया, एंड देन वी हैव मेड फेटुचीनी अल्फ्रेडो एंड दिस इज फ्राइड प्रॉन्स एंड आई मेड डायनामाइट सॉस फॉर यू एज वेल। तुम टेस्ट करना।
another few minutes. Done. Okay. अच्छा, how do you check? इसको कैसे आपको It has पता to चलेगा? taste slightly chewy. Cooked Okay. but chewy. It can't be completely कि जब आप उसको बाइट ले रहे हैं तो बिल्कुल ही नरम है. Should feel like कि आपने एक बाइट ली है. अच्छा, मैंने अभी देखा आप साथ साथ में किचन क्लियर काउंटर कर रही थी, so you like that कि साथ बहुत साथ जरूरी है, बहुत जरूरी है. You have to clean up because आपको पता भी नहीं चलता अगर आप 2 बर्तन साथ छोड़ देंगे तो आपका किचन मेसी हो जाएगा. So this is something that जो मैंने जब हम अक्सर ये वीडियोस देखते हैं बड़े बड़े शेफ्स की, तो तुम नोटिस करो वो मुस्तकिल सफाई और क्लीनिंग अप कर रहे होते हैं. So that is very important. आयशा, ये रेडी हो जाएगा. अच्छा सारा, what's your favorite recipe? I love Pan Asian food, so I love a good Thai red curry. Okay. Next time जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें वो बना दूंगी. But I love Pan Asian food and I love Pad Thai sauce. और मुझे spaghetti marinara Italian में भी बहुत पसंद है. So a combination of Italian and Pan Asian food, I love that. अच्छा सारा, तो आपके साथ जो है ना शूट कौन करवाता है किचन में वाली? अच्छा, कॉन्शियस होती हैं आप शूट के वक्त? नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है. The first few times were very awkward, especially when I started putting my face on the camera. I was like, "Hi Allah, mera to I don't," because most of these big influencer chefs you see, a lot of them look so nice when they're cooking. I don't know how. I'm sure they have air conditioned kitchens, या बहुत सारे लोग open flats में रहते हैं जहाँ पे उनके kitchens ठंडे होते हैं. But कराची की गर्मी में तो आपके बाल, मैंने भी सुबह blow dry किए तुम्हारे आने से 15 मिनट पहले और फिर frizzy हो गए. No use. But you know what? I can't be bothered with it. So cooking is something that I love to do, and if I'm not looking very nice, doesn't matter. Your food should look nice. The food should look nice. And who helps you in shooting the content? So shooting मैं खुद ही कर लेती हूँ because luckily मेरा tripod और light है, but कभी अगर जरूरत पड़े तो जार भाई and Aiza are there, so they help me out. मेरी बड़ी बेटी को कोई शौक नहीं है, उसको सिर्फ खाने का शौक है. This is हम prawns fry कर रहे हैं आयशा. अच्छा, प्रॉन्स में आपने जो ये ब्रेड क्रम्स लगाए? बिल्कुल. सबसे पहले हमने प्रॉन्स को हल्का सा मैरिनेट किया इन सोया सॉस, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और उसके बाद मैंने इसको मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया इन दैट ऑर्डर. So I think this is enough. थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बॉईल किया है, which is okay. ब्लैक पेपर आयशा, ये बहुत जरूरी है. ये आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आपको अक्सर वो ऊपर से देते हैं. हाँ. तो ये this is ready. Wow, lovely. Wow, it looks lovely. अभी मैं इस पे थोड़ा सा तुम्हारे गार्निशिंग करूंगी. और ये है सारा के मसालों का खजाना. मसाले बहुत तो जरूरी ये हैं. सारे हैंडी सब जो आप यूज करती हैं वो आपने रखे? Yes. डेली रूटीन में. So a lot of Pan Asian sauces, a lot of मसाले. अच्छा आयशा देखो, इसमें तो है ना थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर भी डाला हुआ था. अच्छा. So look at how they have थोड़े से फूल गए हैं. So that's the look we want. So we are going to wait for them to be golden brown. Goldenish color. Yes. Yes. अभी और golden brown हो जाएंगे. Sara, what is the one ingredient that you mostly use in your recipes? देखो मेरे ज्यादातर रेसिपीज जो है ना, they start with garlic and olive oil. Most of my recipes. अच्छा सारा, जब पोस्टिंग करना शुरू की तो कैसा रिस्पांस रहा सोशल मीडिया पे? मैंने जब पोस्टिंग शुरू की ना आयशा, तो बगैर लाइट के और एक बहुत ही बेकार से फोन से शुरू की. It was not an iPhone, it was an Android. So this is how they look. Yeah. It was an Android and the quality, obviously the video was not very nice and इतना कुछ ज़्यादा नजर भी नहीं आता था. So then everybody was like, कर रही हो तो फिर सही से करो. So then Bilal got me, he gifted me his iPhone. So I use that now and I have a tripod stand और थोड़ी बहुत lighting. मैं बहुत ज़्यादा कोई high tech videos नहीं बनाती. The videos are very simple, but कोशिश ये होती है कि they are easy to understand and people can make them. So a lot of people tell me, friends वगैरह के, you know, your recipes are easy, they're easy to follow. और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस तरह के लोगों में से ना बनूं जो इंग्रेडिएंट्स छुपा लेता है, you know. So उसे दिखाने के लिए अच्छी वीडियोस बनाई और अच्छे वाले जो important ingredients है वो मिस कर दिए. So I try not to do that because I think that's dishonest. Right. So कोशिश यही होती है कि जो खुद बनाती हूँ वो दूसरों को भी दिखाऊं. जबरदस्त. अच्छा सारा, कौन सी रील पे ना सबसे ज्यादा आपके लाइक्स आए और कमेंट्स आए? So a lot of the baked food that I make, Aisha,
एंड द पास्तास, बिकॉज आई लव पास्तास, तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि कभी सन ड्राई टोमेटो इस्तेमाल किए, कभी वो छोटे चेरी टोमेटोज इस्तेमाल किए. सो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पास्तास एंड डिफरेंट सॉसेज. तो चाहे वो टोमेटो बेस्ड सॉस हो, चाहे वो क्रीम बेस्ड सॉस हो, सो उसमें बहुत लोग फीडबैक देते हैं. एंड देन द बेक्ड आइटम्स एज वेल. राइट. ये मेरी कल दोस्त ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट्स दिए हैं. वाओ, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. यार सल्यूट है हर खवातीन को, इंक्लूडिंग यू, जो कि इस गर्मी में खड़े होके ना खाना बनाती है हमारे अभी तो हमने खैर एसी वगैरह सारे ऑन किए हुए हैं, बट यू नो इन अ लॉट ऑफ हाउसेस जब एसी, किचन में तो एसी नहीं चला सकते ना, और उस पे इस गर्मी में खड़े होके खाना बनाना, लाइक बेस्ट चीज ये है कि आप छोटी डिशेस बनाएं विच रिक्वायर लेस टाइम इन दिस वेदर, स्पेशली जो मई और जून की गर्मी है. इट इज जस्ट टू हॉट टू स्टे इन द किचन. बट मुझे ऐसे लगता है कि हाउस हेल्प पे भी बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाती है, और हम अपने साथ भी ज्यादती करते हैं. सो यू नो एंजॉय भी करें साथ साथ. So, गर्मी लगती है आयशा, ब्लेस्ड हैं हम लोग. You know, we have families, we have loved ones around us who support us. So I think that's also a lot of motivation. तो मेरे से सवाल कर रही थी ना कहाँ से आती है. So when people enjoy what you do, what आपकी मेहनत को लोग appreciate भी बहुत करते हैं. So सही बात. हमारे घर में सब foodies हैं. लोकली मैन्युफैक्चर हो सकती है. हम क्यों, जैसे डिपिट के सॉसेस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. I feel that they're doing a fantastic job of making. Even national का चार is so yummy. अभी जो तुम्हारा मैंने बनाया डायनामाइट सॉस, ये बेसिकली सिराचा यूज होता है इसमें, तो वो सिराचा डिपिट का है. Okay. So I am like really proud of these amazing companies who are, you know, making local brands. These local and then good ones. ये भी नहीं आप बोलें कि टेस्ट नहीं है या अच्छे नहीं है. Yes. अच्छा, अगर कभी सोशल मीडिया पे कोई क्रिटिसिज्म आए तो do you get affected? No, not at all. अब मैंने उस दिन How do you react to it? उस दिन मैं रामेन खाने गई और मैंने एक वीडियो बनाई उस रामेन स्टोर के ऊपर, ओशन मॉल में खुला था, और मुझे नहीं पता था कि कराची में और भी रामेन स्टोर्स खुले हैं. So somebody corrected me कि this is not the first one and you need to, you know, fix your knowledge. I was like, oh my god, I'm so sorry, I did not know. तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, गलतियां हो जाती हैं. खाने में भी गलतियां हो जाती हैं, इंग्रेडिएंट्स में भी गलतियां हो जाती हैं. सही बात है, जरूरी नहीं है. So these are your dynamite drops. Finally, we are going to try this yummy-licious pasta and prawn. And take some prawns. Aizu, aajo. Come, call your sister as well. And this is the sauce. Look like a Korean. मैंने वो बना लिया, बोल बना लिया अपना. You also take ना? Come. Should I put it for you? Thank you. It's so yummy. वाकई सही बताओ. Not just for the I'm screen. the lucky one. I'm eating this. नहीं, this is my favorite prawns. और ये वही सॉस भी. Sorry कबाब जी, अब मैंने सारा रेस्टोरेंट जाना है. मुझे बताएं जी. When are you starting your restaurant? Do you have any plans? No, not really. So this is something that You have it? yeah, come guys. So this is something that you know, it's a passion project. So it's quite want to commercialize it. You know, it's just I have a very good job, and I'm very very happy and satisfied with that. So But don't you think people want to taste it and जिसको try? खाना है वो खा ले आके. So you know, my friends are more than welcome whenever they want. वो आ जाते हैं. So जिसको खिलाना है उसको मैं खिला देती हूँ आयशा. But commercialize करना अभी शायद I'm not mentally ready. जी बेटा. बहुत मजे का. And I am amazed at how quick it was. Like the recipe is super quick when you make it, and it tastes delicious. प्रॉन्स तुमने सॉस के साथ खाना है. हाँ, मैं सॉस ले रही हूँ बिल्कुल. अच्छा, मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया का बताएं सारा, that how you know, माशाल्लाह 8,000 you have here. Yeah, 8,000. I'm so happy. तो ये जर्नी जब स्टार्ट की तो 0 followers and then you know reaching to 8,000. Instagram चैनल तो पहले से ही था. और उसमें आपके सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो थे. बट समहाउ जब रेसिपीज डालनी शुरू की तो फॉलोअर्स आते गए.
Or I have a lot of friends who have basically helped me out, people like you who have been doing this for a while, and they share my recipes. मेरे कुछ एक दो friends हैं who are in the food business and they have a big following as well, तो वो भी कर देते हैं share recipes. So it's very nice when people who are bigger than you in size and in following, तो they support you. So सबसे ऐसा कोई comment है जो आपके किसी वीडियो पे आया and you were like wow, you know, this person or an influencer or anybody who have you heard of Natasha Kizilbash? Yeah. So उन्होंने एक दफा एक heart भेजा था, and a couple of other अच्छा feel होता है ना? It feels very nice when big और Foodie Baba is also he and I used to study together. वो तो उसको तो बेचारे को मैं जब बोलूँ वो मेरी share कर देता है reels, so you know he supports a lot. So there are a couple of people I know who helped out. ये journey अकेले की नहीं है आयशा, अगर the earlier you realize it, the better for you. I agree. So how difficult was this social media for you, या फिर you were like handy with that? No, so it is use करना नहीं इतना मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगा frankly speaking, but it does take up a lot of your time आयशा. So एक है कि आपने रेसिपी शूट कर दी, वो तो चलें कर दी आपने 15-20 मिनट निकाल के रेसिपी शूट कर दी, लेकिन फिर उसको एडिट करना, उस पर कमेंट्स का वेट करना, उस पर जवाब देना, वो बड़ा आपका वक्त लगता है, राइट? एंड इट टेक्स अप सम ऑफ योर पर्सनल स्पेस एंड टाइम दैट इज मेंट फॉर योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, एंड सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बैलेंस इज डिफिकल्ट एंड इट बहुत एडिक्टिव है. सो बड़ा खतरनाक है कि वो आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी ये रियलाइज करें कि व्हेन टू स्टॉप. You know, you have to know when to stop. कि भाई enough for the day. This is it. I just need to now kick back and chill and relax. Addictive हो जाता है, you know, जब the comment you get caught up in it. You get caught up, and when people are liking, तो फिर आपको होता है यार और like जल्दी से कर लो, एक और रील बना दो, एक और पोस्ट कर दो. So you need to know when to stop, because at the end of the day you have to do it at your terms, and you're not supposed to get caught up into it. You did this for because you love it, right? Not because you want validation from other people. So it's very important to keep reminding yourself that कि वो जो validation भी ज़रूरी है, लोगों का feedback भी बहुत ज़रूरी है, but ये आप सबसे पहले अपने लिए कर रहे हैं. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है सारा आपने कि validation अपने आप से पहले होनी चाहिए. It's not important कि हर किसी की validation पे आप depend करो. और लो ठंडे हो जाएंगे. Prawns are very crispy, I tell you. मैं इसका मुझे तो लगता है भी रुके कि ये सामान हो सकता है. Like when I मुझे तो आई है आवाज. आई एम श्योर माइक से आपको भी आई होगी. ये बहुत तो इसके जो रेसिपी है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया? So I marinated the prawns. The prawns need to be washed with vinegar and water to remove the smell. That is very important कि आप उनको थोड़ी देर अच्छा विनेगर के पानी में डाल दें. You drain it and then you marinate it with soya sauce, नमक, काली मिर्च. That's it. और फिर मैंने कोटिंग की with flour, egg and breadcrumbs. That's it. It's very simple. That's it. What are you waiting for? We are paying, and prawns are highly expensive. अभी हम कितने सारे एक साथ, you know, we are able to consume. बाहर आप जाएं तो आपको अगर dynamite prawn 4 to 6. Delhi colony में there's this shop called Baba Fish. उधर से मैं ये लेती हूँ. And they're amazing. Medium sized, jumbo, small, हर किस्म के sizes वहाँ मिलते हैं. So, कहाँ पे ये? दिल्ली कॉलोनी पे. अच्छा. और अच्छी फ्रेश क्वालिटी. हम तो बहुत खाते हैं, so हमारी घर में सी फूड की अब अच्छी खासी कंजम्पशन है. So when you go to the restaurants, तो वहाँ पे जब आप मंगवाते हैं तो आपको तो लगता होगा यार मैं ये बना सकती हूँ घर में खुद. बहुत केसेस में I deconstruct the recipe and then I make it at home. Salads. हाँ. I love Xander's, उनके salads. Yes. और कुछ पास्तास, बर्गर्स, स्मैश्ड बर्गर्स. गोगोस का स्मैश्ड बर्गर मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा नेक्स्ट एजेंडा है कि मैंने उसको रिक्रिएट करना. गोगोस नहीं, अब मैं यहीं पर ही आ जाऊंगी. The sauce is really good. So you have used a dipped sauce. Mayonnaise, mustard and sriracha. अच्छा सारा कभी ऐसा नहीं लगता कि यार कोई और मेरी रेसिपी कॉपी कर लेगा, फिर what will be the charm of my place? Oh, that's so sweet. पता है हाथ का भी जायका होता है बनाने का तरीका. बहुत सारी चीजें अब तुमने देखा कि पानी डाल रहे हैं, पास्ता वाटर डाल रहे हैं, कुछ लोगों को रनी पसंद है, कुछ लोगों को ड्राई पसंद है. सो फिर साथ टेस्ट करते करते आपने चिकन पाउडर डाल दिया, थोड़े से रेड पेपर फ्लेक. सो ये भी आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आल्सो विद टाइम. एक तो स्टैंडर्ड रेसिपी है ना जो हम डालते हैं अपने चैनल के ऊपर, एंड देन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ हाउ एवरीवन मेक्स इट डिफरेंट ना. अब सारा आपको सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की अभी तक आई है कि ये वाली रेसिपी? डीएम्स किस तरह के आते हैं, किस तरह की रेसिपीज शेयर करें? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि एगलेस ब्राउनी बना दें.
So a lot of our followers across the border who don't eat egg, they ask for eggless brownie. So वो फिर मैं substitutions के साथ उनको बता देती हूँ, but I get a lot of DMs about that. और ratios के बारे में पूछते हैं, अगर ये हटा दें तो क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास available नहीं है. Because आजकल a lot of people are fitness freak, है ना? तो आप ये भी इस चीज का भी ध्यान रखती हैं कि जो आपके ingredients हों. जी, अभी कुछ किसी ने कहा कि मैं जो frothy coffee बनाती हूँ, तुमने देखा होगा. उसमें a lot of people say कि can we make this without sugar? तो मैं कहती हूँ unfortunately some things you need sugar for some things, you know. Like अब हर चीज से तो नहीं हटा सकते. अगर कभी किसी सेलिब्रिटी के लिए बनाने का मौका मिले तो आप किसके लिए बनाएंगे? Mahira Khan. Oh my god. She is one of the biggest celebrities. She's cool and she अब तो खैर बहुत सारी हमारी celebrities बड़े famous हो गए हैं, but she was the one who started. She became, I think she was the first famous person in recent years, I think. Yeah. So Mahira, you are literally missing out on Sarah's food. सारा के किचन में आपने जरूर आना है और खाना खाना है. कभी अगर आपके पेज को इतनी हाइप मिल जाती है, आपके पैशन को इतनी हाइप मिल जाती है, so would you want to leave your job and pursue it full time? Not for the time. That is something that I've never considered, Aisha. I love my job. My job brings me great joy, and because of my job, I've had the opportunity to do a lot of things that I would not have done otherwise. I have traveled. I have घर हमने बनाया, बहुत सारी चीजें हुई. बच्चे, you know, kids get to do a lot of things because of the job. So I know I'm very grateful for that. I will never forget that. You need to be aware of your blessings as well. So job अपनी जगह, job की अपनी एक importance है, ज़रूरत है, significance है. इस काम की अपनी एक significance है और need है. Very nice. में है शुरू से, जब से मैं आपको दिखाऊंगी मेरी डायरी है जिससे मैं सब लिखती हूँ ना, प्लान आउट करती हूँ अपनी चीज़ें. तो जब मैंने अपने गेस्ट लिखने शुरू किए थे उसमें you were already one of them. मैंने लिखा था आपका नाम भी, that I will have to call Sarah. तो कराची का कुछ environment और weather ऐसा है कि it is so hot और इतनी गर्मी होती है. There is, you must know, mom in Dubai, Varda. हाँ. When I look at her videos, I am so surprised. वो बंदी रात के 3 बजे पे इतना तैयार कैसे होती है? So circumstances का आपको नहीं पता कि क्या है पीछे. Actually 3 बजे हैं, नहीं बजे हैं, हमें क्या पता, you know. But ये कि yeah, I follow her and sometimes she look really, she looks manages very well. Very well. I don't think I have that in me. I don't think. No. I think अब आप बात ठीक कह रही हैं, weather वगैरह की भी बात होती है. But जो है वो माशाल्लाह the way she carries herself ना, आप पहले उनको देखें या उनका खाना देखें या मेकअप देखें, flawless. So yes. Thank you God and thank you Sarah for बहुत amazing सा खाना. बहुत मजा आया यार. Thank you for having me over. No problem. It was lovely. I'm so glad you came over and I'm so glad we were able to do this together. देखो ना, ऐसे लग रहा है कि आप. So this is a very good alternative to having a drink without the drink. And it's sugarless, ना? ये Nestle वाली है. हाँ, ये best है. मैं तो I drink this now. Which brownie is this? This is a fudgy brownie. You're going to taste the fudgy brownie now. What's inside? This is chocolate, pure chocolate. Kalebu एक brand है, पाकिस्तानी नहीं है, भारत brand. They are very famous It's for very good. good baking chocolate. Guys, you have to try this brownie. I'm telling you, please, you have to try this at home because ये इतनी gooey है. I cannot say much. जब try करके खाएंगे ना हम लोग, जब आपको पता चलेगा. अच्छा सारा, it was very lovely talking to you. और आज जो पूरा हमने ये खाना वाना आपने मुझे बड़ा मजे का खिलाया. I feel so full. मेरा तो पता नहीं अब मैं शाम का रात का भी खाऊंगी नहीं खाऊंगी. मैं बस आप ये conclusion इस episode का इस तरह से ही करूँगी. आपसे पूछना ही चाहती हूँ, आप चाहती हूँ कि लोगों को ये बताएं, जो ख़वातीन घर पे हैं और जो वर्किंग वुमेन भी हैं, that they can do it. Is it possible they can manage and balance things? देखिए, so this is थोड़ा सा I'm just going to change the question a bit कि it is very important for women to know their purpose. Yeah. That is very important. Not everybody is a cook. Not everybody likes to cook. I know lots of working women, mothers who love exercise, who love fitness. And they are running marathons, and they are participating in competitions. So it is very important, Aisha, to find your purpose because purpose makes you happy. So खुशी जो है ना बहुत जिंदगी में जरूरी है. Just because आपके साथ एक mother का label लगा हुआ है,
एक वर्किंग वुमन का लेबल लगा हुआ है, एक कंट्रीब्यूटर का लेबल लगा हुआ है, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप वो काम ना करें जिससे आपको खुशी मिलती है। देखो तुम अपना ये you have a job, right? Yes. But you are also doing this, and we were discussing this offline as well, that this is your passion. Yes. So always do something that brings you happiness. That's the message. I think that is really important. It could be anything. It could be makeup. It could be skincare. It could be fitness. It could be cooking. It could be anything. Absolutely. Two people who are working and following their passion can only say to you कि भाई जिंदगी में चाहे आप किसी भी एज में हैं अपना पैशन जरूर फॉलो करें, and it's never too late in your 20s, 30s, 40s, 50s. Never too late. You just have to have that spark. You have to have that motivation कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. Absolutely. So with that, मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करूँगी, and it was so lovely to have you on Catch Up with Aisha, Sara. Thank you so much for coming and thank you for making this happen. I got a bit lazy. I know that I was a bit busy. बच्चों के exams वगैरह चल रहे थे. Work was busy, but I'm really glad that we figured this out. I'm glad too, and I'll catch up with you in another episode. I'll catch up with Aisha. Till then, अपना बहुत ख्याल रखें. अच्छे खाने आप लोग भी बनाएं. कराची को बहुत साफ रखें. Thank you. अल्लाह हाफिज. Bye bye.